VHS series. Now the today's topic is neighborhood of a point. What is the neighborhood of a point? We discuss here. So any subset n, let's suppose n is a subset of this real number r, right? N is a subset of real number r, then n is called a neighborhood of a point a. कब कहलाएगा? a का neighborhood कहलाएगा, right? n is neighborhood of a point a if क्या हो, a is lie in the open interval. a कोई ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जिसमें क्या हो, a लाई करे. आपको ओपन इंटरवल बता चुका हूँ, व्हाट इज ओपन इंटरवल. तो a इस ओपन इंटरवल में लाई करे और ये खुद ओपन इंटरवल इसी n में लाई करे, n में लाई करे, राइट. देन वी से दैट व्हाट n इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a. बेसिकली यहाँ i जो है एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, राइट. सो n is neighborhood of a point a if a is lies in this open interval and this open interval is subset of n, right. और ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हैं आप. neighborhood means what? पड़ोसी, right. so first this is called, n is called neighborhood of this point. पहले ये क्या हो, एक घर में लाई करे, एक हाउस में लाई करे. वो कैसा हाउस हो? ओपन हो. और ये ओपन हाउस क्या हो, इसी कम्युनिटी में हो. कम्युनिटी या बोल सकते हैं कि उसी के पास हो, राइट. ये भी घर कहाँ लाई करे, इसी के अंदर लाई करे. सो n इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट a, राइट. इसको रियल लाइन से भी समझते हैं, एक रियल लाइन ड्रॉ करके भी समझते हैं अभी. सो ए सबसेट n ऑफ ए रियल नंबर r, ए सबसेट n ऑफ ए रियल नंबर r इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a. देखिए यहाँ यही इंपॉर्टेंट है, n इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a. कब? जब ये किसी ओपन इंटरवल में कोई ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जिसमें ए पॉइंट लाई करे एंड दिस इज बेसिकली सबसेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस एन, राइट. देन वी से दैट एन इज नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए. देखिए इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं. ए सबसेट एन ऑफ आर, ए सबसेट एन आर ऑफ इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए. वही सेम चीज़ है, इसको देखिए थोड़ा सा और कि किस तरीके से रिफाइन किया लैंग्वेज को. n इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, ओपन इंटरवल i. यदि कोई ओपन इंटरवल i एग्जिस्ट करे कंटेनिंग a, ये ओपन इंटरवल किसको कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग दिस a एंड दिस i itself contained in n, right. so a subset n of r is called neighborhood of a point a if there exists an open interval I, there exists an open interval I which containing a, जो क्या करे, कंटेन करे a को और खुद itself contained हो किसमें, n में. then we say that it is neighborhood of this point a. बहुत ही आसान डिफिनीशन है. देखिए किसी भी, आपको बस ध्यान रखना है, जिसको भी मैं बोलूँगा कि ये नेबरहुड है जिस भी पॉइंट का a का, तो पहले इसको कहाँ लाई करना चाहिए, दिस मस्ट बी लाइज इन एनी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में हो. और ये जो ओपन इंटरवल हो ये किसका हो, ये सबसेट हो n का, राइट. या बोल सकते हैं n खुद भी लाई करे इसी i इसी n में लाई करे, राइट. इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन से भी समझते हैं, व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर लेके, एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वी डिफाइन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. Just see, this is the real line, right. This is the real line and this is basically 0 and there has 1, this is 2, this is 3, this is 4, right. in this way here this is -1, -2, we can divide. Now we just focus what is, let's suppose this is an open interval 2 from 2 to 3. I am just 2 to 3, this is an open interval. I am just taking open interval what, 2, 3, right. Now when we say that this is neighborhood of any point, let's suppose here lie 2.5. so 2.5 or 2, let's suppose 2 which lies in this set are 2.5. First it lies in this open interval, right, 2, 3, and this
2 3 is subset of what? Subset of itself. You can say that itself here, which contain 2 3, which contained 2 3, which contain 2 3. So contain 2 3, you can easily take 2 3 itself. So we can say that this set 2 3 is neighborhood of this point 2.5, right? In this way we can define this neighborhood in a real number system. Now you can also take a few more point outside this domain, outside this range, and say whether it is neighborhood of this point or not. Let's suppose we take this open interval 2 3 and our open set this, whether this is neighborhood of a point 5 or not, 5 or not. We just talk about, let's suppose this is n and this is n, whether it is possible 2 3 is neighborhood of this 0.5. First 5 is lie in the open interval, some open interval, let's suppose this is 5, and this lies in the open interval, let's suppose 4 comma 6. 5 is lie where? Either 4 6, we have to take before and after 1 point. So we can take here open interval 4 comma 6, right? 4 comma 6. Whether, now what is the definition? First, this A is lie in any open interval. There exists an open interval which is basically what? Subset of n, subset of n. Then only we can say that it is neighborhood of this point. Now we have to check for which inside this interval lie, whether it lie in 2 3, whether it is possible this is subset of 2 3. ये हो ही नहीं सकता, राइट? हमेशा क्या होना चाहिए? इंटरवल, इंटरवल इस में लाई करना चाहिए. 2 4 6, 4 6 is this one, right? 4 6 is basically this one, and 2 3 is this one. How it is possible? Whether 4 6 is lie inside this? No, this is not. Hence 2 3 is not neighborhood of this point 5. In this way you can check whether the set are what? Set are neighborhood of that point or not. Now we check few more thing. Just now I think what is neighborhood, it is clear. So for the neighborhood, first this point must be lie inside any open interval, and this open interval is subset of that set. Then this set is n is called neighborhood of this point A. बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखना है, A और n. अगर मैं कहता हूँ व्हाट n इज नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट A, तो सबसे पहले इस A को हमें किसी ओपन इंटरवल में होना चाहिए, लाई कराना चाहिए, और कोई ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे, और फिर ये ओपन इंटरवल जो है ये सबसेट हो किसका? n का. देन वी से दैट n इज नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट A, राइट? Now we see few examples of the neighborhood. Now examples are, first अगर मैं बात करूँ रियल नंबर सिस्टम का, क्या रियल नंबर सिस्टम नेबरहुड है किस पॉइंट का? देखिए, द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट पॉइंट. हर पॉइंट का खुद का ही क्या है, ये नेबरहुड है. क्यों? क्योंकि जो भी पॉइंट लेंगे वो किसी न किसी ओपन इंटरवल में लाई करेगा, और ओपन इंटरवल में आप जानते हैं दिस ओपन इंटरवल कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल पॉइंट, एंड इट इज डेफिनेटली सबसेट ऑफ दिस आर, राइट? हेंस दिस इज बेसिकली नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. अब चलिए, अब बात करते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखिए, ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है? व्हाट इज नेबरहुड आपको बता दिया. नाउ द सेट ऑफ क्यू, set q of rational is not neighborhood of any of its point. देखिए क्या लिखा हुआ है, the set q of rational is not the neighborhood of any of its point. क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर बोली जाए, कोई डिफिनीशन बोली जाए, तो फर्स्ट यू ट्राई टू कोरिलेट दिस थिंग. देखिए, अभी हमने नेबरहुड की डिफिनीशन पढ़ी, राइट? वी जस्ट डिस्कस द डिफिनीशन ऑफ व्हाट? नेबरहुड. व्हाट इज neighborhood? Now try to understand why the rational number is not
ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। देखिए ये बात कर रहे हैं हम इसमें रेशनल की, राइट। दिस इज बेसिकली व्हाट, रेशनल। नाउ व्हाई दिस इज नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। लेट सपोज कर लीजिए वी टेक ए वन रेशनल नंबर ए, राइट, and a is lie inside the open interval. Now just think, open interval, I am talking about ab, right, this is open interval where this a lie. Now you know, in if this is what, open interval, then there exists infinite number of rational and irrational point, right. And abhi humne padha what, a is lie inside this interval, right, open interval, and this open interval must be what, subset of this n. Here in this case it is q. You just take q for better understanding, right. This q, this must be satisfy if q is neighborhood of this point a होना चाहिए। अगर क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन वेदर दिस सेटिस्फाई और नॉट। दिस इज ओपन इंटरवल and this contain both what, q and qc. Not only it contain q but also qc. In irrational point भी contain करेगा, in that case it is not subset of q. q हो ही नहीं सकता क्योंकि ये q का मतलब रेशनल है, और जबकि आ क्या जा रहा है इसमें, irrational point भी आ जा रहे हैं, so it is not satisfy. Hence q is not what, neighborhood of any of its point. क्योंकि अगर ये पॉइंट कोई भी होगा, देखिए यहाँ एक पर्टिकुलर केस लेके भी आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज टू विच इज रेशनल, राइट, एंड टू लेट सपोज लाई इन दिस ओपन इंटरवल 0 to 3. लेट सपोज दिस इज लाई एंड 0 to 3, राइट। एंड नाउ वेदर इट इज सबसेट ऑफ क्यू आर नॉट, क्वेश्चन इज दिस, ये सबसेट है कि नहीं क्यू का। तो हियर this contain irrational, rational and irrational both point, right. Here irrational point are also, because it's open interval है तो इसमें irrational और rational दोनों point होंगे, and in that case, and ये दोनों कहाँ से लिए गए, this is from R, so it is not subset of Q. Q का subset नहीं हो सकता क्योंकि Q क्या है, पूरा ही rational है, और यहाँ पे irrational point भी आ जा रहे हैं, right. So it is basically not subset of this q. This open interval cannot be subset of this q, hence it is not what, q is not neighborhood of any of its point. क्योंकि जो भी पॉइंट लाई करेगा वो एक ओपन इंटरवल होगा, और ये डिफिनीशन भी है, ओपन इंटरवल में रेशनल और दोनों रेशनल इरेशनल पॉइंट आएंगे, और इरेशनल इसका रेशनल का सबसेट नहीं हो सकता, राइट। नाउ वी प्रोसीड वन मोर एग्जाम्पल। So now we see two cases. First case, set R of real number is neighborhood. Real number तो होगा लेकिन rational number नहीं होगा। Now open interval. What about open interval? ये open interval है तो ये खुद का ही neighborhood होगा क्या, each of its point. जो भी open interval होगा it is always what, neighborhood of each of its point. क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस ओपन इंटरवल में होगा और ये खुद का ही सबसेट होगा, सो it is what, neighborhood of each of its. Now what about closed interval? देखिए क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, द क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट neighborhood of each point of AB. Yeah, this is basically neighborhood of each point of this open interval but not in the closed interval, right. This closed interval is neighborhood of each of this open interval but is not a neighborhood of end point AB. end point का neighborhood नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर end point लिया मैंने, right, so क्या हो जाएगा, ये इंटरवल से बाहर चला जाएगा, right. जस्ट सी end point को अगर हमने ले लिया तो ये neighborhood इसका क्रिएट करेंगे, दिस मस्ट बी आउटसाइड दिस इंटरवल, सो दिस क्लोज इंटरवल is neighborhood only of the open point या open interval, right, not of the boundary point A and B. end point का ये नहीं होगा क्योंकि ये outside this domain चला जाएगा। Now the null set. What about the null set phi?
देखिए 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। एक चीज़ और समझिए, मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं नो और नॉट लिखते हैं, जब नो नॉट कर देते हैं तो एस हो जाता है, राइट। किसी चीज़ में बोलते हैं ना नो एंड नॉट, जब दोनों एक साथ लग जाएंगे तो फंक्शन बेसिकली क्या हो जाता है, एस हो जाता है, राइट। जैसे ही इज़ गुड, ही या ही इज़ गुड बोल सकते हैं, या फिर कुछ तरीके का सेंटेंस बोलिए जो नो हो और नॉट दोनों लगे, राइट। जस्ट सी, you can say this is my copy, no this is not my copy, this is not my copy, in that case it become s, right। so null set जब कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो उसका नेबरहुड कैसे क्रिएट होगा। सो फाई बोल सकते हैं कि फाई नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, खुद का ही पॉइंट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ फाई विच इज नेबरहुड नॉट ए नेबरहुड, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं है जो नेबरहुड ना बनाए, यानी सारे ही पॉइंट हो गए। सो फाई क्या है, फाई इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, फाई इज बेसिकली व्हाट, नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सो आई एम जस्ट गिविंग हियर 5 example and it is very important example because many times we use these in several places। सो आपको ध्यान रखना है, जो भी यहाँ बताई जा रही है उसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे व्हाट इज़ नेबरहुड, क्योंकि नेबरहुड से रिलेटेड आगे अभी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं, राइट। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, इफ़ वी टॉक अबाउट द नेबरहुड ऑफ ए दिस पॉइंट ए, लेट सपोज आर विच इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, सो देयर एग्जिस्ट ए वन ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल होना चाहिए और ये ओपन इंटरवल खुद इसी आर में लाई करना चाहिए, then only we can say that is R is neighborhood of this point A, right। okay, so we move and let's see what is next। yes, deleted neighborhood of a point, deleted, what is deleted neighborhood of a point। देखिए जिस पॉइंट A की बात कर रहे हैं उसको हटा दीजिए उस नेबरहुड से, तो उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ बहुत क्लियर है, n तो आपको पता ही है, अगर मैं कहूँ n is neighborhood of a point, what is neighborhood of a point, but if you delete this a then it is called deleted neighborhood of a point, right। if from the neighborhood of a point the point itself excluded, right, excluded, if we exclude this point, if this point itself excluded means if n is the neighborhood of a point and we exclude this a itself, ये नेबरहुड में से वो जो नेबरहुड आया उस नेबरहुड में से ए को हम हटा दें, उस सेट में से ए को हटा दें, देन वी से दैट इट इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, राइट, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। दस इफ एन इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए देन दिस सेट एन माइनस व्हाट ए, एन माइनस ए इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। सो समटाइम इट इज ऑल्सो यूज इन मेनी प्लेसेस। नाउ I think it is clear what is deleted neighborhood। if we remove that point itself, जिसके हम बात कर रहे हैं, जिसके neighborhood वो point की जिसकी बात कर रहे हैं, उस point को ही अगर मैं हटा दें तो इसको क्या बोलते हैं, deleted neighborhood of a point। now yes, we have already discussed R is neighborhood of every real number, ये बहुत क्लियर है, अभी आपको दिखाया भी हूँ, आर इज नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। वाई, बिकॉज इफ यू टेक एनी रियल नंबर विच लाई इन दिस ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में, अब ओपन इंटरवल में चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही आर में ही आते हैं, राइट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ वन। नाउ व्हाट अबाउट एन, एन इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ द रियल नंबर, इट्स वेरी क्लियर, कोई भी नहीं हो सकता, ना रेशनल हो सकता है ना तो नेचुरल नंबर हो सकता है। वाई, देखिए इफ लेट सपोज यू जस्ट टॉक अबाउट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2 ले लेते हैं, 2 के नेबरहुड है क्या, ये कोई भी रियल नंबर ले लीजिए जिसके नेबरहुड की बात करें, 2 के क्लोजर है, हम लेते हैं n इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2, क्या ये ट्रू है। देखिए नेबरहुड होने के लिए क्या चाहिए, पहले 2 लाई करना चाहिए किसी ओपन इंटरवल में, राइट। let's suppose 2 is lie inside this 0,3, right, this is an open interval 0,3 in which 2 is lies। now the question is whether this is subset of natural number, this is subset of natural number। देखिए नहीं होगा, उसका रीजन है
0 और 3 के बीच बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट ले लेता हूँ मैं, यहाँ ले लेता हूँ 1/2। क्या 1/2 इस नेचुरल नंबर में आएगा? कामा अगर मैं करूँ यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, वो विच इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ n, hence n is not is neighborhood of any of the real number. The main point of the neighborhood is this open interval. You have to always think about this open interval, whether this open interval lies in this set n or not. If it is lie, then only we can say that it's a neighborhood. N is neighborhood of this point 2, or n is neighborhood of a point a, if only this a lies in this open interval, and this open interval is basically subset of this neighborhood, right, this set, then we say that this set is neighborhood of this point 2 or a. Now yes, a non-empty, one more important property, a non-empty finite set is not a neighborhood of any of its point. A non-empty finite set, why a non-empty finite set is not a neighborhood of? अब आप सोचेंगे फाइनाइट सेट है फिर क्यों नेबरहुड नहीं हो रहा पा रहा? नॉन एम्प्टी है, लेट सपोज दिस इज ए फाइनाइट सेट 1 2 3, राइट, दिस इज ए फाइनाइट सेट एंड इट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट. क्यों? किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता. बहुत क्लियर है, ये फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूँ. देखिए दिस इज फाइनाइट और इसी को हमें क्या बनाना है? नेबरहुड बनाना है. ध्यान रखिएगा जो चीज़ बोली जा रही है, ये कह रहा है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी, इसी को कह रहा है नेबरहुड नहीं हो सकता. क्यों? अगर लेट सपोज यू टेक एनी पॉइंट फ्रॉम दिस सेट, लेट सपोज 2, राइट, 2 इज लाइज इन एनी इंटरवल, राइट, लेट सपोज दिस इंटरवल इज बेसिक ओपन इंटरवल, वी टॉक अबाउट ओपन इंटरवल, लेट सपोज दिस इज 1, 3 वेयर दिस 2 is like 1, 3. Now what about this open interval? It is subset of this finite set, this finite set n. हमने इसी को फाइनाइट सेट के बारे में बात कर रहे हैं. क्या ये n फाइनाइट सेट का सबसेट होगा? नहीं होगा. उसका रीजन है 1, 3 इज ओपन इंटरवल एंड इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कैसे फाइनाइट में लाई कर सकता है, राइट? सो ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट. A is I is सबसेट, ये होना चाहिए ओपन इंटरवल कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट. ओपन इंटरवल क्या करेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन करेगा. तो ये n के बारे में बोल रहा था फाइनाइट, ये फाइनाइट हो ही नहीं सकता, राइट? कैसे हो सकता है कि ये इनफाइनाइट फाइनाइट के अंदर लाई करे? सो इंटरवल नेसेसरली कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट. जो भी आप जिसकी भी बात करेंगे, ये हमेशा जो ओपन इंटरवल है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट वाले का ही सबसेट बना पाएगा, राइट? इट इज सबसेट ऑफ ऑलवेज फॉर ए सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो फाइनाइट सेट कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, एनी पॉइंट. फाइनाइट सेट ध्यान रखिएगा, हमेशा नेबरहुड होने के लिए क्या चाहिए? इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट कभी भी नेबरहुड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सारा जो गेम है वो गेम कैसे खेला जा रहा है? इस ओपन इंटरवल के. और आप जानते हैं ओपन इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, राइट, इन द रियल लाइन. नाउ यस, फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. सुपरसेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. ध्यान रखिएगा, सुपरसेट किसका लिया जा रहा है? नेबरहुड का. इज आल्सो नेबरहुड ऑफ दिस ए. अगर मैं किसी सेट का, ये समझिए आप, नेबरहुड है किसका? ए का, और इस नेबरहुड का मैं सुपर सेट लेता हूँ, तो भी ये सुपर सेट क्या होगा? इस ए का क्या होगा? नेबरहुड होगा. सो एन इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए एंड एम इज बेसिकली सुपर सेट ऑफ दिस एन. एम इज बेसिकली सुपर सेट ऑफ एन, देन एम इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट एन. देखिए अगर ये कंटेन कर रहा है तो नेचुरल सी बात है एन कहाँ लाई कर रहा है? एन किसके अंदर? एम. सबसे बड़ा एम है, तो एम का भी क्या होगा? ए नेबरहुड होगा. बहुत क्लियर है. बट बिफोर दैट एन इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए. पहले ये कह दे रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ए इज लाइज इन एनी ओपन इंटरवल, राइट, एंड दिस ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ बेसिकली एन. ध्यान रखिए यही तो है, ये पहले से दिया है. नेबरहुड है किस पॉइंट का? ए का. तो अब उसका सुपर सेट लें, और n का सुपर सेट m है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं. बेसिकली हम यहाँ दोनों चीज़ बोल सकते हैं,
m is superset of n or n is subset of m. So देखिए यहाँ से if n is neighborhood of a then m is also neighborhood of this a. So any superset of the neighborhood of a point is also neighborhood of that point, right? Now another important property is फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट और आर्बिट्ररी. कुछ भी लीजिए, चाहे फाइनाइट लीजिए चाहे आर्बिट्ररी लीजिए, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए इज नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, राइट? चाहे आर्बिट्ररी चाहे फाइनाइट यूनियन लीजिए, किसके नेबरहुड? देखिए नेबरहुड जितने हैं उनका यूनियन लेना है. देखिए यूनियन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, यूनियन किसका? नेबरहुड का. लेट सपोज के लिए n1 n2 n3 अप टू देयर हैज मेनी नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट. So let's suppose, so if we take its union then it is also neighborhood of this point A, right? It doesn't matter whether it is finite or arbitrary. यूनियन क्या हो, चाहे फाइनाइट यूनियन लीजिए चाहे आर्बिट्ररी यूनियन लीजिए, वो भी क्या होगा? नेबरहुड ऑफ होगा ऑफ दैट पॉइंट. जिसका आप नेबरहुड का हम बात समझिए, नेबरहुड के यूनियन की बात कर रहा है, नेबरहुड के फाइनाइट यूनियन और फाइनाइट आर्बिट्ररी यूनियन की बात कर रहा है, राइट? सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, इफ m and n are neighborhood of a point a then mn is also neighborhood of a point x, right? अगर दो नेबरहुड हैं m और n, किसके? इस पॉइंट a के, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? नेबरहुड होगा इसी a का. यहाँ x लिखा है, इसको a कर लीजिएगा, राइट? this a. and if m and n are neighborhood of a point a, इस point a का अगर neighborhood है then intersection is also neighborhood of that point a, right? So here we see many properties of the neighborhood of a point. Now I am just giving one example, but in this lecture only I am giving this example as a assignment. In the next lecture I will solve this. क्या करना है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको हर एक का एग्जाम्पल देखना, थोड़ा सोचना है. फर्स्ट क्या कह रहा है आपको? देखिए ये बनाना है. वंस वी स्टार्ट द सेकेंड लेक्चर, आफ्टर दिस यू हैव एट लीस्ट आंसर ऑफ दीज फाइव ऑप्शंस, 5 क्वेश्चन यू कैन से दैट. फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट, आपको एग्जाम्पल बताना है इन सब में. ए सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. ऐसा सेट बताइए जो खुद का ही सारे ही पॉइंट का क्या हो? नेबरहुड हो, राइट? सेकंड आपको बताना है ए सेट विच इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, जो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड हो ही ना, राइट? ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं. थर्ड एग्जाम्पल बताना है, देखिए सेट हमें बताना है द सेट विच इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट. ऐसा सेट जो अपने किसी भी पॉइंट का क्या हो? नेबरहुड हो ही ना. थर्ड में कह रहा है द सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट विथ एक्सेप्शन ऑफ वन पॉइंट. एक पॉइंट को छोड़ के, देखिए क्या कह रहा है, एक आपको ऐसा सेट बताना है जो नेबरहुड हो हर पॉइंट का, लेकिन एक पॉइंट को छोड़ के, ओनली वन पॉइंट छोड़ के, ठीक है? मेरे ख्याल से एक चीज़ क्लियर है आपको तीनों में से. पहला आपको क्या बताना है? एक ऐसा सेट बताना है जो क्या हो? अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो, ठीक है? सेकंड कह रहा है ये सेट आपको बताना है जो नेबरहुड ना हो एनी ऑफ इट्स पॉइंट, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ही ना हो, ठीक है? एक ऐसा सेट बताना है आपको कि वो नेबरहुड बना ही ना. थर्ड में आपको क्या बताया? सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट विथ एक्सेप्शन ऑफ वन पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट का वो नेबरहुड हो. फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है द सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्शन ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को छोड़ के. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट को छोड़ के और यहाँ पे 2 पॉइंट को छोड़ के, राइट? यहाँ क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट, हर पॉइंट का ही नेबरहुड हो. यहाँ कह रहा है किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ना हो. ऐसे आपको एग्जांपल्स देने हैं. एंड द लास्ट इज द सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एन. अब आपको एन के लिए पूछ दिया. एन का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है. ऐसा कौन सा सेट है आपको बताने हैं. कैन दिस सेट बी इंटरवल, आपको ये भी बताना है कि ये क्या सेट इंटरवल होगा. सो यहाँ से देखिए बेसिकली लास्ट के 3 की बात करूँ तो ये लास्ट वाला जनरल केस है कि 1 हो जाए और 2 आ जाए, तो आप इसको भी अगर दिखा दें तो भी काम चल जाएगा, राइट?
for n is greater than or equal to 1. So in the next lecture we will solve this. I will give the solution of these option, these 5 option, but till you at least try. देखिए आपको जो मैं हर में हिंट बताया वो आपको ध्यान देना है. पहला, जिस भी नेबरहुड की बात कर, ईच अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, किसी भी सेट का एक पॉइंट ले लीजिए, 0 ही ले लीजिए और इसको किसी ओपन इंटरवल में लाई कराइए. ठीक है, पहले आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी कि किसी ओपन इंटरवल में लाई करें और क्या हो, ये ओपन इंटरवल हर पॉइंट इस में लाई करे आई में. तो ये चीज़ तो बोल ही सकते हैं कि जो सेट है खुद का ही, अगर ये इंटरवल ले ले ए बी, तो ये अपने हर पॉइंट का क्या है, नेबरहुड हो सकता है. या अभी आपने देखा आर रियल नंबर, अभी ऊपर जस्ट एग्जांपल हमने देखा कि कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, राइट, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, दिस लाइज इन एनी ओपन इंटरवल, किसी ओपन इंटरवल में लाई करेगा या आर में ही लाई करेगा और आर खुद का भी आर हो सकता है, राइट. दिस इज लाई इन दिस ओपन इंटरवल एंड दिस ओपन इंटरवल इज बेसिकली सबसेट ऑफ आर. तो इस तरीके से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ होगा होपफुली, और नेक्स्ट वीडियो में फिर